Hello everyone, welcome to Reliable Institute Kota, and here we are presenting you the solution of JEE Main 2021 of 26th Feb second shift. So let's start with the solution. Here on the screen we are having the very first question. Let's read the question. If C and V represents capacity and voltage respectively, then what are the dimensions of lambda? So the question is based on unit and dimension and it is associated with capacitance. We have to find out the dimension of lambda, which is equal to C by V. So let's write lambda and it is C by V. Let's replace C in terms of Q and V. So replacing C in terms of Q and V, we will get Q upon V, and when one V is already present, so we will have V square in denominator. And let's replace V in terms of work and charge. We know that work done is potential difference into charge. So by that we can write it as Q upon work done upon charge. So we will have Q square, and one Q is already present, so we will have Q cube here, and here we will having work square. So basically what we have is, let's write the dimension of Q. So Q we can write as in terms of current as I cube and T inverse and cube of that, so we will be having T inverse and cube of that, so it will be basically T to the power minus 3. And writing the dimension of work here, we can write it as M square L to the power 4 and T to the power minus 4. Now resolving it, we will get the result as M to the power minus 2, L to the power minus 4 and I to the power 3, and we will have T to the power 7. And if we matches it, then we get the option as option number 4. So correct answer is option number 4. This question is of easy category as no or very less calculation is involved and simple manipulation is there. Now let's move on to the next question, question number 2. Now let's read the question. Question reads as, the length of metallic wire is L1 when tension in it is T1. It is L2 when tension is T2. So हमारे पास metallic wire है जिसकी length L1 है, उसमें टेंशन T1 है जब उसकी लेंथ L1 है, और उसकी लेंथ L2 है जब उसमें टेंशन T2 है. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द ओरिजिनल लेंथ. हमें ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट करना है. तो मैं इसकी ओरिजिनल लेंथ L मान लेता हूं, और ये क्वेश्चन इलास्टिसिटी पे बेस्ड है, आप देख सकते हैं. तो हुक्स लॉ का एप्लीकेशन करता हूं 2 बार. तो फर्स्ट केस में टेंशन T1 है, तो हुक्स लॉ के लिए टेंशन अपॉन एरिया को मैं यंग्स मॉड्यूलस इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. चेंज इन लेंथ को मैं लिख सकता हूं L1 माइनस L. जब टेंशन T1 है उस वक्त लेंथ L1 है, तो चेंज इन लेंथ विल बी L1 अपॉन L. ओरिजिनल लेंथ L है. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूं. नाउ हुक्स लॉ में लगाता हूं सेकेंड केस में T2 अपॉन A. व्हाट वी विल हैव इज यंग्स मॉड्यूलस. इस केस में लेंथ L2 है माइनस L और ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now dividing these two equations and solving for L, we will get answer as option number 3, which is the correct answer. So this question involved a very small manipulation. Hooke's law का थोड़ा सा application था, और इसलिए इसको मैं easy category में put करना चाहूंगा. Now let's start with question number 3. The question reads as, an aeroplane with its wings spread 10 meter is flying at a speed of 180 km per hour. प्लेन का विंग्स का लेंथ अपने को दे रखा है, हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है. यहाँ फिगर में आप देख भी सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, तो ये विंग्स ये विंग्स है इसके, है ना. विंग्स की लेंथ 10 मीटर अपने को गिवन है. अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने को क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और डिप एंगल भी मेंशन्ड है, ये 60 डिग्री के बराबर है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है. अपने को बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा प्लेन के विंग्स के टिप्स के बीच में. तो ये जो प्लेन का विंग है इसके टिप्स के बीच में
क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके बारे में अपने को बताना है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला बीवीएल से हम इसको निकाल सकते हैं। बीवीएल में बीवीएल म्यूचुअली परपेंडिकुलर चीजें अपन लेते हैं, तो नेट बी अपने को पता है अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब ये जो मोशन है इस एरोप्लेन का, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे मेंशन्ड है क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन का मोशन है। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो मैं विंग्स को कुछ ऐसा मान सकता हूँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरह से मान सकता हूँ विंग्स को। तो ये जो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें ईएमएफ के लिए। तो डिप एंगल 60 डिग्री है, नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है, तो इसका cos sin 60 कंपोनेंट ले लिया, यहाँ पे वही करके दिखा रखा है हमने इस जगह पे। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज √3/2 इंटू नेट मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ईएमएफ में बीवीएल लगा दिया हमने, तो B is √3/2 of net magnetic field, length of wing is L and velocity which is perpendicular to this length which is in horizontal direction is also given। वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है वेलोसिटी, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया हमने, वो 180 किलोमीटर आप देख सकते हैं 180 किलोमीटर पर आवर गिवन है, उसको 180 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। सॉल्विंग दिस वी गेट रिजल्ट एज 180.25 millivolt, so which is our required answer and matches with option number 1। क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, हालांकि कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा और थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, तो इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में पुट किया जा सकता है। ये ईएमआई चैप्टर का एक इजी सा क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 साउंड वेव चैप्टर से है। क्वेश्चन है ट्यूनिंग फॉर्क ए जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, ये 5 की बीट प्रोड्यूस करता है एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन है और 340 हर्ट्ज है। ए की फाइलिंग कर दी है अपने को हमने, तो 2 की बीट्स मिल रही है फाइलिंग करने के बाद, अपने को बताना है कि ए की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि 5 की बीट स्टार्टिंग में मिल रही है तो एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो ए की है वो एफ ए है, तो एफ ए माइनस 340 इज इक्वल्स टू 5, या तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जो बनती है अपने पास वो ये बनती है कि 340 माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू 5। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो चेक करने के लिए सेकंड इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। हमने ए की फाइलिंग की है, मतलब हमने ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया है। एज वी हैव इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज कर दिया है। तो अब चेक करते हैं, अगर इस इक्वेशन को सही माने तो ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज अगर करते हैं तो डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, बीट 5 से ज्यादा की मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस इक्वेशन को देखें तो ए की फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करते हैं तो जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, और यहाँ पे भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी जो बीट फ्रीक्वेंसी वो 2 हो गई है। सो इस इक्वेशन को हम सही मानेंगे, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एफ ए निकालें तो वी गेट आंसर एज 335 विच मैचेस विद ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि इस सवाल में कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था बीट फ्रीक्वेंसी का, सो वी विल कीप इट इन इजी कैटेगरी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसके v वर्सेस x ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो v और x में जो रिलेशन है एसएचएम में पढ़ते हैं जो, उसको लिख लेते हैं एक बार। v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से v और x में रिलेशन निकालने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं, ओमेगा को इधर ले आता हूं तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, हियर वी हैव, और x को भी इधर ले आए तो ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, और यहां पे ये अपने पास a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनके नीचे आएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन मिल रहा है v और x में, जो कि एक एलिप्स की इक्वेशन है। सो आंसर विल बी एलिप्स विच इज इन ऑप्शन नंबर 3। एंड अगेन क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सा मैनिपुलेशन था तो वी विल कीप इट इन easy category. Now let's move on to question number 6. Question number 6 rates as the trajectory of a projectile in a vertical plane is given. Projectile की trajectory given है और y is a function of x, trajectory की equation given है अपने को। अल्फा बीटा कांस्टेंट्स हैं, yx उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस है प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्शन पॉइंट से उसको ओरिजिन की तरह मान सकते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड ये अपने को बताना है। तो वैसे तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं,
यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन पेश कर रखा है आपके सामने, जिसमें हमने जो प्रोजेक्टाइल का अगर हम ट्रैजेक्टरी देखें तो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आता है कहीं पे, और यहाँ पे स्लोप 0 होगा। तो dy बाई dx 0 करने पे जो x की वैल्यू मिल रही है वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट है। ये हमने प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे। तो बेसिकली अपने को इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है वो अपने को मिल जाएगा, एंड दैट विल बी हाफ ऑफ द रेंज, वो रेंज का आधा होगा। तो dy बाई dx 0 किया हमने, उससे x की वैल्यू अपने को मिलती है अल्फा अपॉन 2 बीटा, और ये जो रेंज का आधा वैल्यू है ये ही है वो x का वैल्यू। इसको हमने वापस से ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन में पुट कर दिया तो उससे अपने को ये y की वैल्यू मिल जाएगी। तो करस्पॉन्डिंगली y की जो वैल्यू आती है उस इक्वेशन में पुट करने के बाद इस y वाली इक्वेशन में इस x की वैल्यू को डाल दिया हमने, तो उससे y की जो वैल्यू मिलती है वो ये मिलती है, वो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी। अब आगे tan थीटा निकालने के बहुत डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि अपने को h और r का रेशियो पता होता है, तो वी हैव h अपॉन r रेशियो एज tan थीटा 4, तो इसका भी यूज करके अपन निकाल सकते हैं। h अपने को पता चल चुका है, यहाँ पे हमने निकाला h को, इसको यहाँ पुट कर ले। r रेंज इसका डबल हो जाएगा विच इज अल्फा बाई बीटा, इसको यहाँ पुट कर ले और 4 को इधर ले आए, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, एंड करस्पॉन्डिंगली जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो अल्फा के बराबर आ जाएगी। So correct answer which matches with the option is 1, in which tan inverse alpha is the projection angle and this height is alpha square upon 4 beta. So this is again a moderate easy to moderate category because few amount of calculations is involved and question belonging to projectile motion. Now let's move on to next question. Question number 7. Question number 7 reads as: a cord is wound around the circumference of wheel of radius r. The axis of wheel is horizontal and moment of inertia about it is I. तो बेसिकली अपने को एक कॉर्ड दी हुई है जो व्हील के सर्कमफेरेंस पे ऐसे रैप्ड है, इसका रेडियस r गिवन है अपने को, व्हील की एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है। इस वेट mg को हमने हैंग कर रखा है यहाँ पे कॉर्ड से और इसको रेस्ट से रिलीज किया यहाँ पे हमने। तो ये h डिस्टेंस जब फॉल हो जाएगा, h डिस्टेंस जब ये नीचे आ जाती है, उस मोमेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये h हाइट जब डिसेंड हो जाएगा तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट वुड बी mgh। सो द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, this will be equal to gain in kinetic energy of this ring, this wheel and this weight. So writing the kinetic energy, अगर मैं इसकी kinetic energy लिखूं, if I write kinetic energy of block, we have half mv square, और इसकी kinetic energy क्योंकि ये pure rotation में है तो I can write as half I omega square. अब इस v को भी आप ओमेगा बाय r लिख सकते हो। आई एम रिप्लेसिंग दिस v बाय ओमेगा अपॉन r, तो यहाँ पे ओमेगा r, सो व्हाट वी विल हैव इज ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हियर अगर हम ओमेगा के लिए सॉल्व करें, इफ वी सॉल्व फॉर ओमेगा, व्हाट वी गेट ओमेगा एज, वी विल गेट, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड ओमेगा स्क्वायर ओनली। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिलेगी 2mgh अपॉन I प्लस mr स्क्वायर, एंड इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 2। दिस क्वेश्चन involves a simple calculation in energy conservation equation, so we can put it in easy to moderate category, and this question was based on topic rigid body dynamics. Now let's move on to the next question, question number 8. Question number 8 reads as: internal energy U, pressure P and volume V of an ideal gas are related. तो U, P और V मतलब इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम में अपने को एक रिलेशन दिया हुआ है और गैस का टाइप पूछ रखा है, डायटोमिक है, पॉलीएटोमिक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं U को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिख देता हूं। U को मैं लिख सकता हूं F/2
पीवी। आई होप आपने फॉलो किया होगा F/2 nRT, nRT को मैंने पीवी लिख लिया, इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव इज 3PV + 4। अब यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, F की वैल्यू चेक करें। इफ यू चेक द वैल्यू ऑफ F, व्हाट वी हैव इज 6 + 4/PV। इसको अगर आप चेक करोगे बच्चों तो आपको दिख जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी होगा वो 6 से ज्यादा आएगा, तो F इज मोर देन 6, दैट इज फॉर श्योर कि F की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी। और अगर F की वैल्यू 6 से ज्यादा है तो गैस विल बी पॉलीएटॉमिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अगेन ये में थोड़ा सा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन इन्वॉल्व था, तो इस क्वेश्चन को हम इजी से थोड़ा सा मॉडरेट साइड में ज्यादा रख सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अपने को 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें एक को असर्शन के नाम से दिया हुआ है, दूसरे को रीजन के नाम से। और वो स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, असर्शन रीड करते हैं पहले तो। फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स द एंगुलर साइज ऑफ इमेज। तो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और एंगुलर साइज ऑफ इमेज सेम है एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में हमने इमेज फॉर्मेशन दिखा रखा है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और उसका एक इरेक्ट वर्चुअल इमेज पीछे बन रहा है। तो आप देख सकते हैं जितना एंगल ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल इमेज भी सबटेंड कर रहा है। तो एंगल तो दोनों सेम सबटेंड करते हैं, पर ये मैग्निफिकेशन होता कैसे है? मैग्निफिकेशन ये होता है कि इस तरह से होता है कि अब हम ऑब्जेक्ट को आई के और पास रख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये लेंस यूज नहीं करते या ये माइक्रोस्कोप का यूज नहीं कर रहे होते तो अपने को ऑब्जेक्ट को डी दूरी पे रखना पड़ता, और उस केस में जो मैग्निफिकेशन आता, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और हमने डी दूरी पे इसको रखा होता, ये हाइट है, तो ये जो एंगल सबटेंड करता उस केस में थीटा, उसको थीटा ओ बोल लेते हैं, तो थीटा ओ की वैल्यू h/d के बराबर होती। बट अब क्योंकि इस माइक्रोस्कोप का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को और पास रख पा रहे हैं, इमेज को बनवा रहे हैं डी पर, तो अब ऑब्जेक्ट को क्योंकि और पास रख पा रहे हैं तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा h/this distance which is more as compared to that case in which we are putting object at distance d। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम और पास रख पा रहे हैं इसलिए मैग्निफिकेशन अपने को मिल पाता है। बट ड्यूरिंग मैग्निफिकेशन इस वाले केस में ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है और इमेज जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो तो आपस में सेम ही है। तो इसलिए रीजन को अगर आप रीड करेंगे तो मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर। यस, इट्स ट्रू एंड हेंस इट सबटेंड्स दैट। तो इसके कंपैरिजन में कि अगर माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते तो डी दूरी पे रखना पड़ता, बट माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद उसको और पास रख पा रहे हैं, ये है कारण मैग्निफिकेशन का। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है कि स्टेटमेंट ए जो असर्शन है वो भी ट्रू है और रीजन है वो भी ट्रू है, और इसलिए इसका हमने 3 आंसर दिया है। थर्ड नंबर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर जो है, जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है, एक्सप्लेनेशन है ए का। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अगेन एक मॉडरेट कैटेगरी का सवाल हम बोल सकते हैं। सिंपल सा एक जो इमेज फॉर्मेशन है माइक्रोस्कोप का वो अपने को पता होना चाहिए था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये सवाल है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको हमने हॉलो स्फीयर के सेंटर पे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स स्फीयर के थ्रू पूछ रहा है या बात कर रहा है उसके बारे में, 0 कह रहा है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर इन द स्फीयर। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हॉलो स्फीयर है और यहाँ पे डायपोल रखा है सेंटर पे हमने। तो क्योंकि डायपोल इक्वल अपोजिट चार्ज है प्लस माइनस, तो हमको कह सकते हैं कि नेट चार्ज इनक्लोज 0 है, और क्योंकि क्यू इन 0 है तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और फ्लक्स 0 हो जाएगा। और अगर अपन फील्ड की बात करें तो हम जानते हैं डायपोल के कारण जो फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे ये 2kp अपॉन आर क्यूब है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये kp अपॉन आर क्यूब है। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, तो 0 ये कहीं पे भी नहीं होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है कहीं भी, और चार्ज क्योंकि चार्ज इनक्लोज 0 है तो नेट फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू 0 होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 में एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस अपने को r गिवन है। तो वी हैव अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर, इसका रेडियस r गिवन है, और इसमें ऐसा कह रहे हैं कि Q टोटल चार्ज ऑन इट, तो जो भी टोटल चार्ज होगा वो उसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा। और द
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r इज 0। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा और ये kq/r² के बराबर होगा, तो ये 0 नहीं होगा। हाँ, फ्लक्स, क्योंकि चार्ज इंक्लोज 0 है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई भी लाइन कट नहीं कर रही सरफेस को, सरफेस पे बट कट नहीं कर रही, इसलिए फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज 0। जबकि स्टेटमेंट 2 में ठीक इसका ऑपोजिट बोल रहा है कि फ्लक्स को नॉन जीरो बोल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को वो 0 बोल रहा है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल स्लाइट नॉलेज ऑफ कंडक्टर और डाइपोल पर बेस्ड था, तो इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में पुट करना चाहूंगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। The recoil speed of hydrogen atom after it emits a photon in going from n equals to 5 state to n equals to 1 state। तो बेसिकली अपने को हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन हो रहा है n equals to 5 से n equals to 1 पे, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहां से यहाँ, तो फोटोन कुछ रिलीज होगा और जो इस एनर्जी स्टेट और इस एनर्जी स्टेट के एनर्जी का डिफरेंस है वो फोटोन की एनर्जी और इस एटम के रिकॉइल एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट अस अज्यूम कि ये v स्पीड से रिकॉइल कर रहा है। अब ये रिकॉइल स्पीड जो v है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बहुत नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू जो एनर्जी फोटोन के पास होगी। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो ऑलमोस्ट फोटोन के एनर्जी के बराबर है। ये ट्रांजिशन की एनर्जी यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है हमने। किसी nth एनर्जी स्टेट की एनर्जी होती है -13.6 z²/n², उससे फिफ्थ और फर्स्ट स्टेट की एनर्जी लेकर के डिफरेंस लेते हैं तो ये 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं डेल्टा E, इसको अगर मैं डेल्टा E लिख लूं कि ये जो एनर्जी है वो डेल्टा E के बराबर है, तो डेल्टा E ये ही ऑलमोस्ट फोटोन की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं hc/λ। इसमें से h/λ की वैल्यू हम अगर देखें तो वो डेल्टा E/c के बराबर हो जाएगा और ये h/λ मोमेंटम हो जाएगा उस फोटोन का जो निकला है। उस फोटोन के मोमेंटम को मोमेंटम कंजर्वेशन से हम इस रिकॉइल मोमेंटम जो इस एटम का होगा उससे इक्वेट कर सकते हैं। सो आई कैन से mv विल बी इक्वल h/λ और इस h/λ की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं। हमें ऐसे रिकॉइल स्पीड जो मिलेगी वो मिल जाएगी डेल्टा E/c जो कि h/λ की वैल्यू है अपॉन मास ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। इन सबको ऐसा यूनिट में पुट करें, डेल्टा E अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको भी जूल में कन्वर्ट करके पुट करें। c स्पीड ऑफ लाइट है, m हाइड्रोजन एटम का मास को भी अपन ऐसा यूनिट में पुट करें तो ये v की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 4.17 मीटर पर सेकेंड, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एंड इट मैचेस विद ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व थी, सो वी कैन कीप इट इन मॉडरेट कैटेगरी, अ क्वेश्चन बिलोंगिंग टू मॉडर्न फिजिक्स बोर्ड मॉडल। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है। एक सर्किट दे रखा है फिगर में, इंडक्टेंस इंडक्टर का, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का और रेसिस्टेंस रेसिस्टर का अपने को मेंशन्ड है सवाल में, और जो वोल्टेज है ये भी सप्लाई वोल्टेज मेंशन्ड है। अपने को रेजोनेट फ्रीक्वेंसी निकालनी है और पीक करंट निकालना है। पीक करंट निकालने के लिए यहाँ पे पहले इंपीडेंस कैलकुलेट करके दिखा रखा है हमने। Z इज R² और XL - XC²। XL और XC रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL की वैल्यू ω_L होती है और XC इज 1/ωc। XL की वैल्यू निकालें तो वो 10 आता है और XC की वैल्यू 100 आती है। ओमेगा की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ये 100 है, तो ओमेगा इंटू L करें तो उससे ये 10 मिलेगा और 1/ωc करें, C 100 माइक्रोफैराड है तो उससे वो वैल्यू अपने को 100 मिलती है। इसको सॉल्व करते हैं तो जो Z है इंपीडेंस सर्किट का वो 150 ओम अपने को मिलता है। पीक करंट निकालने के लिए पीक वोल्टेज अपॉन Z दैट इज इंपीडेंस करें तो ये 0.2 एम्पियर के बराबर आता है। अब रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है उनकी वैल्यू इक्वेट की जाती है और उससे जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है दैट कम्स आउट टू बी 1/√LC। तो यहाँ पे वही किया हमने, 1/LC में L और C की वैल्यू जो क्वेश्चन में मेंशन थी उसको पुट किया और उसको फिर 2πf के बराबर हमने इक्वेट कर रखा है। यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 2πf से f की वैल्यू निकालें तो ये f की वैल्यू 50 हर्ट्ज के बराबर निकल के आती है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। 0.2 एम्पियर इज द peak current and 50 hertz is the resonant frequency. So correct answer is option number 1. यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की एरर है बट इसको we can neglect। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे अपने को 50 हर्ट्ज के बराबर मिलेगा। ओके,
Now let's move on to the next question. क्वेश्चन नंबर 13 अगेन इलेक्ट्रोस्टैट से है. इसमें इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इस बॉडी का मास 1 kg और उस पे चार्ज है 5 मिली कूलम का. उसको हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया है वहां पे. ये इंक्लाइन की हाइट 1 मीटर दे रखी है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस पे 0.2 है और अपने को बताना है कितने टाइम बाद ये यहाँ से नीचे आएगा. तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम इसका डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वाली डिस्टेंस वो चल के आएगा, तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन निकालने के बाद s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने वाले हैं. एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसकी एफबीडी यहाँ फिगर में दिखा रखी है हमने. एक नॉर्मल लग रहा होगा और ये mg का कंपोनेंट mg cos 30 यहाँ पे आएगा. 1 है इसका मास तो 1g cos 30. mg का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आएगा जो कि 1g sin 30 है. यहाँ पे एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ मान रहे हैं और उसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्लाइड कर रहा है ऐसा मान रहे हैं, तो म्यू इंटू एन फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी. तो n यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रखा है हमने. n को कैलकुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उसका भी एक कंपोनेंट आएगा. तो ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 हो गया, आप देख सकते हैं. जिसका जो ये कंपोनेंट आएगा वो आएगा 1 sin 30 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आएगा ये 1 cos 30. तो QE जो है QE इसका वैल्यू आप देखेंगे तो ये 1 होगा. आप चेक कर सकते हो Q 5 मिली कूलम दिया हुआ है. तो QE अगर आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आपको 1 न्यूटन दिखाई पड़ेगी. तो ये QE ये वाला एंगल 30 है तो ये cos कंपोनेंट आएगा cos 30, और इधर QE का एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ जो कि होगा QE sin 30 के बराबर. अब नॉर्मल की वैल्यू चेक करें बच्चों तो नॉर्मल की वैल्यू QE sin 30 प्लस 1g cos 30 के बराबर होगा जो कि यहाँ पे लिख रखा है हमने. अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये एक्सेलरेटिंग फोर्स इज 1g sin 30 mg sin 30 माइनस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका कंपोनेंट और फ्रिक्शन को म्यू एन लिख रखा है हमने और उसको मास से डिवाइड कर रखा है. यहाँ से उसको सॉल्व करें वैल्यूज को पुट करके तो जो a की वैल्यू अपने को मिलेगी इट कम्स आउट टू बी नियरली 2.3, और यहाँ पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लें तो यहाँ पे t की वैल्यू निकल के जो आती है वो 1.31 सेकंड आती है. यहाँ पे ये l ये वाली दूरी है, ये हाइट 1 है तो यहाँ पे sin 30 यूज करके अपन ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं 1/sin 30. तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे अपन. उससे जो टाइम की वैल्यू मिलती है वो 1.31 सेकंड मिलती है, एंड ये मैच करता है ऑप्शन नंबर 4 से. हालांकि इस सवाल में कंसेप्ट बहुत आसान सा था बट क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी तो वी विल पुट इट इन मॉडरेट कैटेगरी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. इस क्वेश्चन में अपने को एक स्प्रिंग दिया हुआ है, दो मासेस हैं सेम मास m जो कि स्प्रिंग के एंड पे टाइड है. B वाले मास पे एक फोर्स लगा रखा है जो कि फिगर में हमने दिखा रखा है यहाँ पे, और A क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि मास A स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम मास B. तो ये इस तरफ कहीं मूव कर रहा हो विथ एक्सेलरेशन A, और अपने को एक्सेलरेशन पूछ रखा है मास B का. तो मास B का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सिस्टम पे न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं. लेट अस अज्यूम कि एक्सेलरेशन B का इस तरफ कुछ है AB. न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम अगर लगाएं तो I can write F is the net force acting on this system, net external force, which I can equate to mass, which I can equate to mass of B into acceleration of B plus mass of A into acceleration of A को मैं माइनस A पुट कर रहा हूं. यहां से जो अपने को एक्सेलरेशन B का मिलता है वो एक्सेलरेशन जो B का अपने को मिलता है इसको यहां लिख रहा हूं मैं. इट कम्स आउट टू बी F प्लस MA अपॉन M. तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा F अपॉन M प्लस A. बट एनटीए ने इसका जो आंसर दिया था वो फोर्थ ऑप्शन को आंसर दिया था विच इज F माइनस MA अपॉन M. तो ये थोड़ा एम्बिगुअस था इस मामले में क्योंकि उन्होंने F माइनस MA अपॉन M दिया था, जबकि हमारा आंसर F अपॉन M प्लस A जो कि ऑप्शन नंबर 3 है ये आ रहा है. इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी पर ठीक है, हमने जो न्यूटन्स लॉ सिस्टम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर निकालते हैं तो अपने को आंसर 3 मिलता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेमीकंडक्टर का सवाल है लॉजिक गेट का.
इसमें अपने को आउटपुट सिग्नल बनाना है। ये लॉजिक गेट दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे एक सर्किट दी रखी है जिसमें लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं और ए और बी इनपुट्स हैं, वो भी सिग्नल इनपुट अपने को सवाल में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे इसका पहले बूलियन सॉल्व कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल जज कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे इनपुट ए जा रहा है और यहाँ पे भी ए जा रहा है और ये ए डॉट ए यहाँ पे आएगा। ए डॉट ए की वैल्यू ए होगी और उस पे नॉट है तो बेसिकली यहाँ पे वी विल गेट ए बार। यहां से जो इनपुट आएगा वो बी आएगा, ये और गेट है तो यहाँ पे अपने पास होगा ए बार प्लस बी और फर्दर उसका नॉट करें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वी विल गेट ए बार प्लस बी होल बार विच कैन बी रिटन एज ए डॉट बी बार। अब अपन इनपुट को देख करके आउटपुट सिग्नल जज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इनपुट को देखूं 0 से 1 के लिए तो ए का सिग्नल हाई है एंड बी इज लो, तो इसको 1 की तरह ट्रीट करें और इसको डॉट 0 का बार इज 1, तो ये 1 आना चाहिए। तो 0 से 1 में अपना आउटपुट 1 होना चाहिए, तो ये थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अपन 1 से 2 सेकंड के लिए चेक करें तो ये दोनों 1 की तरह ट्रीट होंगे, तो ये a 1 है, b 1 है, b का बार इज 0, सो a डॉट b विल बी 0, तो इससे फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें 1 से 2 में 0 दिखा रखा है, अब इसके आगे मैं चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। रेडियो एक्टिव सैंपल इज अंडरगोइंग अल्फा डीके एट एनी टाइम t1 उसकी एक्टिविटी a है और टाइम t2 पे इसकी एक्टिविटी a/5 है और अपने को एवरेज लाइफ 1/λ की वैल्यू पूछ रखी है। तो हम लिख सकते हैं दोनों केस में रेडियो एक्टिव लॉ लिखें अपन। तो फर्स्ट केस में देखें जब टाइम t1 हो रहा है तब उसकी एक्टिविटी a है, उसको मैं लिख सकता हूँ इनिशियल एक्टिविटी e⁻ -λ टाइम t1 पे, और यही हम सेकेंड केस में लिखें तो एक्टिविटी a/5 आएगी और इनिशियल एक्टिविटी को a0 बोल रहा हूँ, दिस इज λ अब मैं अगर इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लूं और लॉग ले लूं तो वी विल लैंड अप टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन ये इक्वेशन अपने को मिल जाएगी ln5 λ t2 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो होगी t2 - 1/λ की जो वैल्यू होगी दैट इज t2 - t1 ln5 एंड इट मैचेस विद ऑप्शन नंबर 3 t2 - t1 ln5। अगेन ये बहुत इजी सा सवाल न्यूक्लियर फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी का, सो वी विल पुट इट इन इजी कैटेगरी। Now let's move on to next question. Question number 17. Question number 17. A scooter accelerates from rest for time t1. तो एक स्कूटर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है और उस वक्त एक्सेलरेशन इसका a1 है एंड देन इट रिटार्ड्स विद कांस्टेंट रेट a2, तो इसका डी एक्सेलरेशन a2 दिया हुआ है फॉर टाइम t2 एंड इट कम्स टू रेस्ट फाइनली। तो t1 और t2 का रेशियो अपने को पूछ रखा है, तो यहाँ पे हमने v वर्सेस t ग्राफ बना रखा है, v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन शो कर रखा है हमने और फिर रिटार्डेशन शो कर रखा है। ये वाला टाइम t1 है एक्सेलरेशन का और ये t2 टाइम के लिए डी एक्सेलरेट कर रहा है। अब यहाँ पे इस वाले लाइन का जो स्लोप है vt ग्राफ है, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन होगा, तो इस स्लोप को मैं tan अल्फा बोलूं फिगर के अकॉर्डिंग या a1 बोल लूं, उस a1 रेट से एक्सेलरेट हो रहा था, तो मैं लिख सकता हूँ Vmax अपॉन t1, आई कैन राइट इट एज Vmax अपॉन t1, वही लिख रखा है हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम t1 की वैल्यू लिख सकते हैं Vmax अपॉन a1। सिमिलरली इसके लिए स्लोप अगर मैं लिखूं तो इसका स्लोप a2 होगा, इसका वैल्यू दे रखा है कि रिटार्डेशन a2 का है, उसको मैं Vmax अपॉन t2 लिख सकता हूँ। यहाँ से t2 की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी Vmax अपॉन a2। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं तो हमारे पास t1:t2 का रेशियो जो है वो बड़े आसानी से आ जाएगा a2 अपॉन a1 के बराबर, जो कि मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 से। अगेन इस सवाल में कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर थी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, तो इस सवाल को अगेन मैं इजी कैटेगरी में पुट करना चाहूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, लेट्स रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है कि सेकंड पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड, जो कि अपने आप में गलत स्टेटमेंट। हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड के बराबर होता है, तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया, पहले दिख रहा है अपने को। स्टेटमेंट 2 बोला कि टेक्स प्रिसाइजली 1 सेकंड टू मूव फ्रॉम 2 एक्सट्रीम पोजीशन। तो बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजीशन अगर हम देखें, जैसे एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में जो टाइम लगता है, तो बेसिकली वो हाफ ऑसिलेशन का टाइम है
और हाफ ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वो 1 सेकेंड के बराबर होगा, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए अगर अपन चेक करें 1 2 3 4 में, तो 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू विच इज इन ऑप्शन नंबर 2। और अगेन इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड के बराबर होता है। तो अगेन वी विल पुट इट इन वेरी इजी कैटेगरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, अ वायर ऑफ 1 ohm हैज लेंथ ऑफ 1 मीटर। इस वायर को हमने स्ट्रेच किया है 25% से, परसेंटेज चेंज जो है रेसिस्टेंस का वो अपने को पता करना है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर जब भी हम वायर की लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम को कंजर्व मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, लेट अस से L है वॉल्यूम लेंथ इनिशियल, एरिया इनिशियल A है, बाद में लेंथ को हमने n टाइम्स कर दिया। फॉर एग्जांपल इफ वी मेक इट n टाइम्स, तो n टाइम्स लेंथ होने के बाद इसका NL हो गया लेंथ, और एरिया क्रॉस सेक्शन A फाइनल मैंने AF मान लिया। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो फाइनल एरिया आएगा ना, एरिया फाइनल, वो इनिशियल एरिया अपॉन n हो जाएगा, इनिशियल एरिया अपॉन n हो जाएगा। और अगर अपन नया रेसिस्टेंस देखें, रेसिस्टेंस की वैल्यू रो एल अपॉन ए होती है, तो फाइनली जो रेसिस्टेंस आएगा रो एल अपॉन ए, तो नया लेंथ एन एल लिख के और नए एरिया को ए अपॉन एन लिखें, तो जो नया रेसिस्टेंस आ रहा है आर फाइनल, आप देख सकते हैं वो एन स्क्वायर टाइम्स आ रहा है इनिशियल रेसिस्टेंस, एन स्क्वायर टाइम्स इनिशियल रेसिस्टेंस, वही यहां पे हमने लिख रखा है इस वाले इक्वेशन में, एन इनिशियल। अब यहाँ पे चेंज निकालना बहुत आसान है, परसेंटेज चेंज। तो फाइनल हमने 25% इंक्रीज किया है, तो 1.25 टाइम्स कर दिया है रेसिस्टेंस को, ऐसा बोल सकते हैं, लेंथ को 1.25 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ n की वैल्यू 1.25 वी कैन पुट। तो चेंज जो होगा वो होगा 1.25 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर r, इनिशियल रेसिस्टेंस को r बोल रहा हूं, माइनस इनिशियल रेसिस्टेंस, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, अपॉन r इंटू 100। यहां से r कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो ये नियरली 56.25% के बराबर आता है, जो कि मैच करता है ऑप्शन नंबर 1 से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, तो यू कैन पुट इट इन मॉडरेट कैटेगरी। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग वेक्टर्स गिवन है ए बी सी। अपने को करेक्ट रिलेशन चूज करना है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इसको मैं ए कैप बोल दूं, और इसमें अगर अपन ऐसे सोचें कि ये B है रिफ्लेक्टेड रे एंड आउटवर्ड नॉर्मल को C इस तरह से ले लें, C कैप, तो अगर मैं ये एंगल को थीटा बोलूं तो आई कैन से दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब A और B दोनों को मैं लिखता हूं, इस वाली डायरेक्शन को मैं X कैप मान लेता हूं। A वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A वेक्टर इज 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 A cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस सी कैप डायरेक्शन। ओके, और इसका एक कंपोनेंट एक्स कैप में आएगा, सो वी विल गेट ए साइन थीटा एक्स कैप। अब वैसे बी वेक्टर को लिख लेते हैं, तो बी वेक्टर को अगर लिखें तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा सी कैप डायरेक्शन, एंड वी विल हैव बी साइन थीटा एक्स कैप डायरेक्शन। अब एक्स कैप की वैल्यू को यहां से उठा करके इस वाली इक्वेशन से इसमें पुट कर दें, तो क्या मिलेगा अपने को, इसमें पुट करने के बाद ये जो बी वेक्टर है या बी कैप है, इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से, ये ए बी सबका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर से ए बी सी। तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ इज, यहाँ पे अपने पास बचेगा ए वेक्टर जो कि इंसिडेंट रे है, ए वेक्टर, और यहाँ पे बचेगा अपने पास प्लस 2c cos थीटा, 2c वेक्टर cos थीटा। इस cos थीटा को आप a और c के डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। a और c का डॉट लेंगे तो a और c वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो आई कैन राइट a डॉट c इज, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज माइनस cos थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा। सो आप इस cos थीटा को माइनस a डॉट c लिख लें, और इसको माइनस a डॉट c लिखने के बाद ये थर्ड ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Let's come to question number 21. Volume V of given mass of monoatomic gas changes with temperature T according to this relation. इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ एक मोनोएटमिक गैस का। वर्क डन पूछा गया अपने को, टेम्परेचर अगर 90 केल्विन से चेंज हुआ है,
तो डायरेक्टली अपन वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एम और 1 माइनस एक्स। ये जो x होता है इसको आप तो ऐसे देख लो, अगर आप इस इक्वेशन को pv की पावर m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट में लिख लें तो ये m, ये इंडेक्स है m, या आप tv के टर्म्स में सोचे तो ये है tv की पावर m माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा आता है। तो ये t और v में रिलेशन है, तो t और v में रिलेशन देखें तो v की पावर माइनस 3/2 बनता है। तो बेसिकली m माइनस 1 इज माइनस 3/2, वहां से m की वैल्यू माइनस 1/2 आती है। इसको यहाँ पे पुट करें तो ये वैल्यू 60 r के बराबर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उन्होंने x r दिया हुआ है तो x की वैल्यू विल बी 60, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग अ कैरियर इज 5 किलोहर्ट्ज, then the number of AM broadcast station accommodated in 90 kilohertz bandwidth are। So अपने को यहाँ पे मैसेज सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है। आफ्टर मॉड्यूलेशन हम कह सकते हैं कि इसकी जो बैंडविड्थ हो जाएगी मैसेज सिग्नल की वो 2 टाइम्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 किलोहर्ट्ज हो जाएगी, और अवेलेबल बैंडविड्थ अपने पास 90 किलोहर्ट्ज है। तो नंबर ऑफ चैनल्स दैट कैन बी एक्कोमोडेटेड को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो बैंडविड्थ अवेलेबल है डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ करस्पॉन्डिंग टू ईच मैसेज सिग्नल और ईच चैनल। सो 10 है बैंडविड्थ करस्पॉन्डिंग टू ईच चैनल और 90 बैंडविड्थ अवेलेबल है, डिवाइड करने पे अपने को 9 मिलता है। दैट इज द नंबर ऑफ broadcast stations that can be accommodated. So the question was very easy, a very simple calculation. We can put it in easy category, a question belonging to principle of communication. Now let's move on to the next question. Question number 23. Let's read the question. Two stream of photons possessing energies equal to twice and 10 times the work function. So यहाँ पे दो stream की बात की गई है। एक में उनकी जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन का ट्वाइस है, और दूसरे स्ट्रीम में वो 10 टाइम्स है वर्क फंक्शन का। यहाँ पे देख सकते हैं अपन मेटल हर बार सेम लिया हमने दो केस में, और हमें बताना है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनकी मैक्सिमम वेलोसिटीज का रेशियो क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे पेश कर रखा है हमने, आप देख सकते हैं 2 बार हमने इक्वेशन लगाई है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ये फर्स्ट वाले केस में जो बीम भेजा है उसकी जो एनर्जी है फोटोन एनर्जी वो 2.5 दैट इज 2 टाइम्स वर्क फंक्शन है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होंगे उसको मिक्सर से लिख सकते हैं फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज हाफ एम v1 स्क्वायर। ये v1 हमने स्पीड मान ली है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ सिमिलरली केस 2 में जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें फोटोन एनर्जी 10 है, 10 टाइम्स वर्क फंक्शन, और उसमें वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने पे जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की दैट इज हाफ एम v2 स्क्वायर। अब इनको डिवाइड कर दें तो इनको डिवाइड इक्वेशन 1 और इक्वेशन को डिवाइड करने पे अपने को v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर एंड फाइनली v1:v2 का रेशियो 1:3 मिलेगा। इस रेशियो को x:y बोला गया और x की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी अपने को, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो अगेन वी कैन पुट इट इन इजी कैटेगरी। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स इजी कैटेगरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 24. Let's read the question. A point source of light S placed at a distance of 60 centimeter. तो ये सोर्स है अपना और ये 60 सेंटीमीटर 60 पे रखा हुआ है मिरर से, और 50 सेंटीमीटर का मिरर है, वर्टिकली हैंग कर रहा है मिरर। एक आदमी, एक मैन वॉक कर रहा है मिरर के सामने इस लाइन पे, और ये लाइन 1.2 मीटर पे दैट इज 120 सेंटीमीटर पे वो लाइन है जिस लाइन पे आदमी मिरर के पैरेलल वॉक कर रहा है। तो ये डिस्टेंस पूछा गया अपने को, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स। तो ये मिरर जिस लाइट सोर्स का इमेज बना रहा होगा वो जहां जहां से मैन इस लाइन पे वॉक कर रहा है, वो जहां जहां से उसको देख पा रहा होगा उन दोनों पॉइंट्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की दूरी अपने को पूछी गई है। तो हम सोच सकते हैं ये सवाल फील्ड ऑफ व्यू से लिंक्ड है। तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दिखा रखा है इसका, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। जैसे अगर मैं उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखने की कोशिश करूं जहां जहां से वो इमेज विजिबल होगा, तो बेसिकली इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। तो मिरर के एक्सट्रीम से ये रे, एक इंसिडेंट रे बनाई है मैंने जो मिरर के एक्सट्रीम से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, और मिरर के इस एक्सट्रीम से रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही है। तो ये जो लेंथ होगी, ये पूरी लेंथ, दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की दूरी।
उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, जैसे मैंने फिगर में इसको x दिखा रखा है, तो ये अगर x है, मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं कह सकता हूं कि ये इसका जो बेस होगा और इसका जो बेस होगा उनका रेशियो हाइट के रेशियो में होगा। ये 60 है, ये पूरा 120 है, तो इसका हाइट 60 है, इसका हाइट 120 है, तो 1:2 का रेशियो है। तो हम कह सकते हैं बेस का रेशियो भी 1:2 का होगा। इसका बेस अगर x है तो इसका बेस 2x हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर लें, तो उससे अपने को, अगर इस लेंथ को मैं y बोल रहा हूं, ये वाली लेंथ y है, तो ये वाली लेंथ भी 2y हो जाएगी। अभी जो पूरी लेंथ आएगी बच्चों, ये आएगा 2x + 2y + x + y, दैट इज 3x + 3y। 3x x + y की वैल्यू मिरर की लेंथ है जो कि 50 सेंटीमीटर अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स x + y 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, तो वी कैन पुट इट इन मॉडरेट कैटेगरी, अ क्वेश्चन बिलोंगिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, टॉपिक फील्ड ऑफ व्यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड a। तो पार्टिकल के एसएचएम का एम्पलीट्यूड अपने को दे रखा है, उसका टाइम पीरियड t मेंशन्ड है सवाल में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, जब पार्टिकल की स्पीड उसके मैक्सिमम स्पीड की आधी है तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमसे पूछा गया सवाल में। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एसएचएम करते हुए पार्टिकल का स्पीड और x में जो रिलेशन होता है वो यहां मैंने लिख रखा है। यहां पे स्पीड के बदले हम हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पुट कर देते हैं। मैक्सिमम स्पीड a ओमेगा होती है, जहां पे a एम्पलीट्यूड है और ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे a ओमेगा पुट कर दिया मैंने, a ओमेगा बाई 2, ये a ओमेगा मैक्सिमम स्पीड है। इसको सॉल्व करने पे अपने को जो x की वैल्यू मिलती है वो मिलती है √3 टाइम्स एम्पलीट्यूड बाई 2, और अपने को ये x पूछा गया है। सिंपली वी कैन सी दैट x की वैल्यू 3 के बराबर है। अगेन इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, एंड ये क्वेश्चन एसएचएम को बिलोंग करता है, एंड कैटेगरी वी कैन पुट इट इन इजी, इट वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 26. Let's read the question. 27 similar drops of mercury are maintained at 10 volt each. तो 27 एक जैसे ड्रॉप है और हर का पोटेंशियल 10 वोल्ट मेंटेन कर रखा है हमने। All these spherical drops combined into a single big drop. तो ये सारे ड्रॉप कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं। हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है बिगर ड्रॉप की। तो पोटेंशियल एनर्जी हम बिगर ड्रॉप की बताएंगे, उसके लिए हमें इसका चार्ज चाहिए होगा। जैसे कोई अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है +q और ये r रेडियस के स्फेयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स इट्स रेडियस। अब ऐसे ऐसे ये एक सिंगल ड्रॉप का सिनेरियो मैंने आपको दिखा रखा है। लेट अस अज्यूम कि एक सिंगल ड्रॉप का चार्ज q है, ऐसे 27 ड्रॉप्स आपस में कंबाइन कर गए। तो 27 ड्रॉप जब आपस में कंबाइन कर गए तो उनका रेडियस क्या होगा, ये हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कंजर्व करते हैं, तो 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, वन ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। इसको इक्वेट कर देते हैं बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम से, विच इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। बच्चों इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट कैपिटल R इक्वल्स टू 3 टाइम्स स्मॉल r। अब मैं बड़े वाले का एनर्जी लिखता हूं। ये जो एनर्जी लिखी है बच्चों मैंने फर्स्ट वाले की एनर्जी, एक सिंगल ड्रॉप की एनर्जी लिखी है, इसको मैं U1 बोल लेता हूं, वो यहां पे लिख के भी दिखाया हमने। अब बड़े वाले ड्रॉप की अगर एनर्जी लिखें तो बड़े वाले ड्रॉप की एनर्जी को मैं लिख सकता हूं K, बड़े वाले ड्रॉप का जो चार्ज होगा वो 27 ड्रॉप के चार्ज के सम के बराबर होगा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 27 टाइम्स Q का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स इसका रेडियस। इसका रेडियस हम निकाल चुके हैं 3r है। अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स को मैनिपुलेट कर दूं और इसको इस तरह से रीड करूं, 27 का स्क्वायर अपॉन 3 और बाकी टर्म्स को एक जगह लिखूं, तो ये अपने को दिखाई पड़ेगा kq स्क्वायर अपॉन 2r। बच्चों आप देख सकते हो ये जो एनर्जी है ये एक ड्रॉप की एनर्जी थी जिसको हमने U1 कहा था। तो जो फाइनल बिगर ड्रॉप की एनर्जी आ रही है जिसको मैं U फाइनल कह रहा हूं, ये ओवरऑल 27 स्क्वायर बाई 3 टाइम्स
इनिशियल एनर्जी है। और ये जो टर्म है यहाँ पे हमने लिखा भी रखा है 27 स्क्वायर बाई 3, इसकी वैल्यू 2, उसको सॉल्व करने पे वैल्यू 243 आती है। तो हम कह सकते हैं जो फाइनल बिगर ड्रॉप बना उसकी एनर्जी इनिशियल ड्रॉप जो एक सिंगल ड्रॉप था, छोटा ड्रॉप, उसके 243 टाइम्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा 243। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, सो वी कैन पुट इट इन मॉडरेट कैटेगरी, a question belonging to electrostat. Let's move on to the next question. Question number 27. Let's read the question. Time period of a simple pendulum is t. तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड अपने को क्वेश्चन में मेंशन है t. Time taken to complete 5/8 oscillation starting from mean position. तो मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हुए, लेट अस से ये मीन पोजीशन है, इस पोजीशन से स्टार्ट करते हुए 5/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में अगर ये अल्फा बाय बीटा टाइम लगता है, अल्फा बाय बीटा इंटू टी ये टाइम लगता है, अपने को अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दो, अपने को 5/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करने की बात की गई है। अगर हम 5/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करने की बात करें तो बेसिकली वी कैन राइट इट एज 4/8 प्लस 1/8 ऑसिलेशन, विच इज हाफ ऑसिलेशन प्लस 1/8 ऑसिलेशन। तो इसको अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो हाफ ऑसिलेशन मतलब ये मीन से एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस से एक्सट्रीम से मीन तक आएगा, तो ये हाफ ऑसिलेशन हो गया। और इस पे जो t/2 फर्दर ये 1/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। अगर ये मीन से एक्सट्रीम जाता है तो ये 1/4 ऑसिलेशन होता है। हमें 1/8 ऑसिलेशन करना है, मतलब अपने एंगुलर एम्पलीट्यूड का आधा ही मूव करेगा। इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर मैं थीटा मान लूं तो ये θ/2 तक ही मूव कर रहा है, ये 1/8 ऑसिलेशन हो गया। मीन से θ/2 एंगुलर एम्पलीट्यूड का हाफ। अब ये मीन से एंगुलर एम्पलीट्यूड का हाफ जाने में क्या टाइम लगेगा, इसको यहाँ पे इक्वेशन लिख के निकाल सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल का इक्वेशन ये है, जहां पे थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा नॉट उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो मीन से स्टार्ट हो रहा है तो हमने साइन ओमेगा टी मान लिया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने मैक्सिमम का हाफ पुट कर दिया, θ0/2, तो ये यहां इक्वल होना चाहिए। ये θ0/2 पुट करेंगे इसको, सो वी विल गेट sin ओमेगा टी 1/2 एंड ओमेगा टी π/6 आ जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं जो टाइम आएगा, टाइम की वैल्यू आएगी π/6 ओमेगा, विच इज नथिंग एल्स बट t/12। तो इस वाले ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज t/12। इनको सम करें तो अपने पास आंसर आता है 7t/12। अपने से अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 7, which is the required answer। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्योंकि इन्वॉल्व था तो इस क्वेश्चन को मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू एसएचएम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द रिपोर्टेड फिगर ऑफ अर्थ the values of acceleration due to gravity is same at point A and C। तो A पॉइंट पर और C पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम है। आप देख सकते हैं A स्फेयर के या अर्थ के अंदर का पॉइंट है और C उसके बाहर का पॉइंट है। इनफैक्ट ये डिस्टेंस को भी आप अगर नोटिस करें, ये C पॉइंट का डिस्टेंस है सरफेस से, वो अर्थ के रेडियस का हाफ है, दिस इज r/2। एनीवेज लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर, आगे बढ़ते हैं सवाल को। अपने को ये पूछा गया है कि अगर हम रेशियो लें OA और AB का, OA लेंथ और AB लेंथ का रेशियो, उसको x/y बोल रहे हैं, तो x की वैल्यू अपने से पूछी गई है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे A पॉइंट पे और C पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं और उनको इक्वेट करते हैं। वही किया है हमने यहाँ पे। ये अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये सरफेस के बाहर का पॉइंट है और वहां पे gm/r² से हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, वही लिखा है हमने यहाँ पे gm/r²। सेंटर से दूरी ये r + r/2 है, विच इज 3r/2। और ये जो हमने लिखा है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड पॉइंट पे लिखा है। इनसाइड पॉइंट पे g की वैल्यू या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो gm r, वेयर स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अपॉन रेडियस क्यूब होता है। दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे लिख करके अगर हम इक्वेट करें तो अपने को जो स्मॉल r की वैल्यू मिलती है, ये OA पॉइंट, ये OA लेंथ, इसको स्मॉल r बोल रहे हैं, वो 4r/9 के इक्वल मिलती है इसको सॉल्व करने पे। ये पूरी लेंथ OB लेंथ r के बराबर है, कैपिटल R, और OA की वैल्यू 4r/9 है, तो ये AB जो लेंथ है, AB लेंथ दैट इज 5r/9। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, OA और AB का रेशियो निकालें तो ये 4:5 आएगा। अपने से x की वैल्यू पूछी गई है तो x की वैल्यू विल बी 4। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, स्लाइट नॉलेज ग्रेविटेशनल फील्ड की होनी चाहिए थी, तो वी कैन पुट इट इन मॉडरेट कैटेगरी, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू ग्रेविटेशन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 29।
1 mole of rigid diatomic gas performs a work of Q/5 when heat Q is supplied to it. तो Q हीट सप्लाई करने पे एक डायटमिक गैस उस पे वर्क Q/5 हो रहा है, वर्क गैस जो कर रहा है वो Q/5 है। डेल्टा U निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 4Q/5 डेल्टा U हो जाएगा। हमें मोलर हीट कैपेसिटी पूछा गया गैस का, तो देखो बच्चों यहाँ पे अपन इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर अपने को डेल्टा U लिखना हो तो डेल्टा U को मैं लिख सकता हूँ NCV डेल्टा T, और उसकी वैल्यू को आई कैन राइट एज Q माइनस Q/5 विच इज 4Q/5। और मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए मैं हीट को NC डेल्टा T लिख लेता हूं। दिस इज द C वी नीड टू फाइंड आउट। मैं इस दो इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बच्चों, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के और फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास Q अपॉन 4Q/5 बचेगा, और यहाँ पे अपने पास N और डेल्टा T वाली टर्म कैंसिल आउट होकर के C अपॉन CV बचेगा। यहां से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C की वैल्यू अपने को यहाँ मिलेगी, ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/4 CV। और क्योंकि गैस डायटमिक है, डायटमिक गैस का CV पुट करें तो दिस वुड बी 5/4 इंटू 5/2 R विच इज 25 R/8। और इसको अगर कंपेयर करें इस टर्म से तो हमें x की वैल्यू 25 मिलती है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन इन्वॉल्व था, तो अगेन इसको वी कैन पुट इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट, अ बिट ऑन मॉडरेट साइड, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। Let's move on to the next question. Question number 30. Let's read the question. The Zener diode has VZ 30 volt. Okay. The current passing through the diode for following circuit. तो इस सर्किट में डायोड से क्या करंट पास हो रहा है ये अपने को निकालना है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि Zener डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करता है, 30 वोल्ट उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज 30 वोल्ट हो रहा होगा। ये रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। ये इसको अगर मैं 0 मान लूं और इसको मैं 90 मान लूं, तो ये पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, इस पे भी 0, और यहाँ पे ये 30 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी 30 वोल्ट। मैं इस ब्रांच में करंट निकाल सकता हूँ। इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन ये होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस ब्रांच में भी करंट का डायरेक्शन ये होगा। मैं इस ब्रांच और इस ब्रांच में करंट निकाल सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, शो कर रखा है। इस ब्रांच में करंट को I बोला है, इसमें I1 बोला है। तो I की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस 90 माइनस 30/4 किलो, वो यहाँ निकाल रखा है, 15 मिली एम्पियर होगा। और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 30 माइनस 0/5 दैट इज 6 मिली एम्पियर। तो इस ब्रांच में जंक्शन लॉस इस पॉइंट पे देखें तो इस ब्रांच में जाने वाला करंट, ये करंट माइनस इस वाली ब्रांच का करंट होगा, दैट विल बी 9 मिली एम्पियर विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, सो वी कैन पुट इट इन इजी कैटेगरी, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू सेमीकंडक्टर्स Zener diode। Thank you students and wish you all the best for your results.